Let us now do one question on how to prepare the statement of affairs and the second, the surplus or deficiency account. I will read out the question from the book. Following is the balance sheet of Rajasthan Textiles Limited as on 31st March 2018, on which date a winding up order was made. So winding up of the company was ordered on 31st March 2018. Order was made means it is by the tribunal. Then the particulars are given regarding the equity and liabilities. We have the shareholders funds, preference capital 1000 shares of rupees 100 each fully paid, 1 lakh, 20,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 8 per share paid up. The amount is 1,60,000. Profit and loss balance is negative, that is 58,000. That means there is a negative or the debit balance of profit and loss account. Non-current liabilities: 10% mortgage debentures 1,20,000. This current liabilities: bank overdraft secured by land and building 60,000. So they have a charge on land and building. Rent, rates and taxes 18,000. These will be the preferential creditors, because we know that any taxes, any rates or any dues to the government are treated as preferential creditors. Then trade creditors, bills payable 75,000 and 5,000 respectively. So the total of the equity and liabilities is 4,80,000. Then we have the assets. The non-current assets are land and building 1,30,000, machinery 80,000, investments 10,000, current assets inventory 95,000, book debts 1,10,000, bills receivable 25,000 and cash in hand 30,000. Again the total is 4,80,000. So after giving this balance sheet, the additional information is given to us. The following further information is available. Land and building are valued at 75,000. Machinery is valued at 50,000. Investments are valued at 16,000. Inventory is estimated to produce rupees 1,10,000. Bad debts are rupees 20,000 and doubtful debts are rupees 30,000. Estimated to realize 40%. Bills receivable considered to be bad are 8,000. Bills discounted rupees 20,000. Liability on them is estimated to rank rupees 5,000. Prepare the statement of affairs and deficiency account. So we have to, on the basis of this given information, prepare these two statement of affairs and deficiency account. So we have we have discussed the format of statement of affairs. We simply have to put the values now. So you can see right from the beginning, I am telling you, statement of affairs as on 31st March 2018. That is the date on which the winding up order is made. Now first thing is the assets not specifically pledged. वो assets, सभी assets जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो हमने अगर क्वेश्चन को देखा ध्यान से तो हमें सिर्फ एक ही ऐसा asset नज़र आया जिसके ऊपर कोई चार्ज है. तो किसके ऊपर चार्ज है? दैट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग. अदरवाइज बाकी सब फ्री एसेट्स हैं. सो वी कैन राइट ऑल अदर्स एक्सेप्ट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग. तो बाकी जो भी एसेट्स थे आपके, यू कैन स्टार्ट विद कैश इन हैंड. कैश इन हैंड इज 30,000. बिल्स रिसीवेबल, अब देखिए बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट जो आपको बैलेंस शीट में गिवन था वो 25,000 है. तो 25,000 में से लेकिन लास्ट में आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी ध्यान में रखना है. बिकॉज रिमेंबर व्हाट वी आर ट्राइंग टू राइट हियर, द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू. हमें बुक वैल्यू नहीं लिखनी, वो वैल्यू लिखनी है जो उससे हमें मिलेगा पैसा, रिकवर कर पाएंगे. तो बिल्स रिसीवेबल है लेकिन साथ में ये भी दिया हुआ है कि 8,000 आर बैड. 8,000 आउट ऑफ द बिल्स रिसीवेबल आर बैड. तो 25,000 जो आपके बिल्स रिसीवेबल थे, वी कैन ऑल्सो क्लैरिफाई दिस थिंग हियर और राइट दिस थिंग हियर दैट दिस विल बी 25,000 माइनस द मनी विच वी कैनॉट रिकवर. कितना नहीं रिकवर कर पाएंगे? 8,000. सो 8,000 आर बैड. तो यहाँ पे आपने जब टोटल 25,000 माइनस 8,000 लिखा, so we are left with 17,000, right? Then after that we have the next information is related to, let me just write it here, 20. Why we have written 25,000 minus the bad amount is 8,000.
तो ये आपका वैल्यू रह गई 17,000। फिर आती है बुक डेट्स की बारी। बुक डेट्स आपके जो डेटर्स हैं उसमें से भी ध्यान से देखिए, जो बुक डेट्स आपको दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, दे आर 1,10,000। लेकिन 1,10,000 में से आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। बैड डेट्स आर 20,000 एंड डाउटफुल डेट्स आर 30,000, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 40%। ठीक है, इसका क्या मतलब है? टोटल डेट्स हैं आपके 1,10,000। 1,10,000 पैसा हमारे पास आना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि बैड डेट्स हो गए 20,000। बैड हो गए मतलब कोई पैसा नहीं आएगा, तो 20,000 बिल्कुल नहीं आएगा। बचा कितना? 90,000। 1,10,000 में से जो यहाँ पर आपको, आप अगर और डिटेल में इसको समझना चाहें तो वी कैन राइट इट हियर। 1,10,000 आपका टोटल था, उसमें से चला गया 20,000 बैड डेट्स हो गए, तो कितना बचा? 90,000। 90,000 में से भी कह रहे हैं कि जो 40% है, डाउटफुल डेट्स आर 30,000, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 40%। ठीक है, इसमें से भी 30,000 जो है वो डाउटफुल है। तो इसमें से भी अगर हम 30,000 माइनस कर दें तो ये कौन से हैं जिनके ऊपर आपको डाउट है? दे आर डाउटफुल डेट्स। सो अब बच गए आपके 60,000। तो 60,000 तो हमें पक्का यकीन है दैट दे आर गुड डेट्स कि उससे पैसा मिलेगा, तो 60,000 मिल जाएगा। तो पहली चीज़ जो आपने लिखी वो यहाँ पे है 60,000। कितना पैसा हम रिकवर कर पाएंगे वो बताना है। तो पहला है 60,000, क्योंकि हमने बैड को भी माइनस कर दिया और डाउटफुल को भी माइनस कर दिया। लेकिन फिर जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है कि जो डाउटफुल डेट्स हैं उस पर 40% आपको मिल जाएगा, तो 30,000 पूरा लॉस नहीं होगा। 30,000 का 40% कितना है? 12,000। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा? 40%। तो इसका जो 40% मिलेगा दैट इज़ 12,000, वो हमने यहाँ लिया है। जो डाउटफुल है 30,000, उसका 40%। एक तो जो पूरे गुड है उस पर मिल जाएगा 60,000, और जो डाउटफुल थे 30,000 उस पर मिल जाएगा 40% जो है 12,000, और जो बैड है वो पूरा बैड है, उस पर कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी? 72,000। 60,000 प्लस 12,000। दिस इज़ हाउ यू गेट द रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम बुक डेट्स। उसके बाद है आपका इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में कोई इंफॉर्मेशन अलग से नहीं है। द वैल्यू इज़ 1,10,000। इन्वेंट्री को आपने एज इट इज़ लिख दिया 1,10,000। इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग टू रियलाइज 16,000, वो आपने एज इट इज़ लिख दिया। फिर मशीनरी है, मशीनरी को बेचकर 50,000 वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 2,95,000। ये आप रिकवर कर पाएंगे उन असेट्स को बेचकर जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब जिस एसेट के ऊपर चार्ज था उसके लिए हम अलग से एक स्टेटमेंट बनाएंगे। असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, वो क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर चार्ज है, जो आपके क्रेडिटर्स हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का चार्ज है इसके ऊपर। तो इससे आपने रियलाइज़ किया 75,000। 75,000 इज़ द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। और जो क्रेडिटर है, जो लोन है, वो कितने का है? ओवरड्राफ्ट है हमारा 60,000 का, तो 60,000 हम पे कर देंगे। तो यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी नहीं है, जितने क्रेडिटर्स का अमाउंट था सारा पे हो गया। अगर हम उसे पूरा नहीं पे कर पाते तो हम कहते कि वो डेफिशिएंसी मानी जाएगी टू द क्रेडिटर्स, और उसको हम एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें किसी को भी अनसिक्योर्ड मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा पैसा हमने पे कर दिया है और बच भी गया है पैसा। कितना बचा है? 15,000। तो वो 15,000 हम बाकी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू विल शो इट। उसके बाद आएगी समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। ग्रॉस एसेट्स जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, मींस टोटल जितना भी पैसा आएगा सभी एसेट्स को बेचकर। तो पहले तो यहाँ पे आपको आएगा 2,95,000, और वो एसेट्स जो हमारे स्पेसिफिकली प्लेज्ड थे लैंड एंड बिल्डिंग, उसको बेचकर आएगा 75,000। तो टोटल पैसा हमारे पास कितना आएगा? 3,70,000। लेकिन अब ये बताना है कि इसमें से कितना अवेलेबल होगा। एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसमें से कितना पैसा बचेगा हमारे पास अगली लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए? वो है 3,10,000, क्योंकि 60,000 तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ये जो हमने यहाँ देखा 60,000 हम ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, तो
95,000 तो हमारे अदर एसेट से बेचकर जो आया था, और 15,000 यहाँ से बचा है। तो 2,95,000 प्लस 15,000, 3,10,000 हम अब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 60,000 तो हमने पहले ही यूज़ कर लिया टू पे द लोन या जो आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको पे करने के लिए। तो अब 3,10,000 बच गया। अब इस पैसे का यूज़ कैसे करना है, दैट वी विल सी इन द सेकेंड पार्ट जो आपका यहाँ पर है। ये देखिए, we can see here. I'll just move to the other side to explain you this thing. जो आपके amount that is left with us is 3,10,000. इस 3,10,000 को आपने कैसे यूज़ करना है, that you can see here, right? तो अब आप देखिए, लाइबिलिटीज़ हैं, ग्रॉस लाइबिलिटीज़। पहली थी 60,000 जो हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे जिनके पास चार्ज था लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, तो वो तो हमने पहले ही पे कर दिया यहाँ पे, तो इसलिए दोबारा से हमें उसे पे नहीं करना। दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू वाइल डिस्कसिंग द फॉर्मेट कि ये खाली होगा क्योंकि ये हम पे कर चुके हैं, राइट। और अगर कुछ नहीं पे कर पाते, मान लो कमी रह जाती, तो फिर वो कहाँ काउंट होता, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में काउंट होता, यहाँ पे हमेशा खाली ही रहेगा, राइट। देन दूसरी हमारी लाइबिलिटी है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। तो ये 18,000 है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जो रेट्स एंड टैक्सेस आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, जिसको हमने प्रेफरेंशियल माना है, उसको हमने यहाँ 18,000 लाइबिलिटी लिखा और फिर पे कर देंगे 18,000। तो कितना बच जाएगा, 3,10,000 हमारे पास था, उसमें से कितना चला गया, 18,000, तो कितना बच गया, 2,92,000। अब ये वाला बैलेंस किसके लिए है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए। तो डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट कितना है, पहले हम लिखेंगे एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ असेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर्स, ये कितना है, 2,92,000। देन अब 1,20,000 के आपके डिबेंचर होल्डर्स हैं। 1,20,000 के डिबेंचर्स को पे करने के बाद उसको भी अगर माइनस कर दें तो फिर कितना बचा, 1,72,000। दिस इज एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स डिबेंचर होल्डर्स, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के बाद जो सरप्लस बच गया है। अब किसको पे करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या क्या आएंगे, आपके ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 75,000, बिल्स पेबल हैं 5,000, फिर जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है फॉर बिल्स डिस्काउंटेड, उसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि उस पर बिल आपने डिस्काउंट किए हुए हैं 20,000 के, लेकिन उस पर जो लाइबिलिटी एक्चुअली बनेगी वो 5,000 है, तो कितना पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, 5,000। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी में आपको ये देखना है कि कितने की एक्चुअल बनेगी लाइबिलिटी, दैट इज़ 5,000। तो ये सारी मिला के आपके क्या हो गए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 85,000। अब ये टोटल वैल्यू आपकी आ गई, जो बच जाएगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के बाद, दिस इज नोन एज एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड क्रेडिटर्स। मतलब क्रेडिटर्स को पे करने के बाद इतना पैसा बच गया 87,000। इसमें से अब हम कैपिटल को पे करेंगे। पहले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो 100 रुपये का एक शेयर है, और कितने शेयर्स हैं, 1,000। सो वी हैव 1 लाख इज़ द वैल्यू हियर। और दूसरा है 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹8 पेड अप। तो उस पर आपके 8 रुपये ही अभी तक आपने कॉल किए हैं, तो उतना ही पे करना है। तो 8 इंटू 20,000 1,60,000, सो वी हैव टू पे 2,60,000। तो ये आपके 2,60,000 पेमेंट ज़्यादा बन रही है, जो बच गया पैसा वो कम है, 87,000 ही। इसका मतलब हमारे पास डेफिशिएंसी है, हमारे जो असेट्स हैं वो सफिशेंट नहीं है सभी को पे करने के लिए। लाइबिलिटीज़ तो पे हो गई हैं, लेकिन कैपिटल को रीपे नहीं कर पाए, तो वी हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ 1,73,000। अब यही डेफिशिएंसी आपको दूसरे अकाउंट में भी नज़र आनी चाहिए। दूसरा अकाउंट कौन सा है, लिस्ट एच में जो डेफिशिएंसी या सरप्लस अकाउंट हम बनाएंगे, इसको हम कहाँ से शुरू करते हैं, आइटम्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसी को बढ़ाने वाले आइटम हैं। तो सबसे पहला तो आपका लॉस है, जो आपका बैलेंस शीट में ही दिया हुआ था, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ओवर दी एसेट्स। जो लॉस का बैलेंस था 58,000, जो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो पहली डेफिशिएंसी है आपकी। अब हम उन लॉसेस को लेंगे जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किए हैं, राइट।
तो कुछ लॉस तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तभी हमें पता चला कि हमारे पास लॉस है 58,000। लेकिन जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन के बाहर, उससे आपको ये पता चलेगा कि अभी तक कौन से लॉस को आपने काउंट नहीं किया है। तो जितने भी हमने ये असेट्स रियलाइज किए हैं, उसमें हमने देखा कि कुछ असेट्स जो हम बुक वैल्यू ज़्यादा दिखा रहे थे लेकिन एक्चुअली बेच के हमें कम मिला है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दिखा रहे थे हम 1,30,000, लेकिन उसको बेचकर हमें कितना मिला, 75,000। सो उतना लॉस, 55,000 किस पे लॉस है, लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो वो हमारा लॉस है जिसको अभी तक हमने नहीं कहीं पे लिखा है अपनी बुक्स में, क्योंकि वो हमें बाद में पता चला है। तो जो जो लॉसेज आपने अभी तक नहीं राइट ऑफ किए हैं, उनको भी आप डेफिशिएंसी में इंक्लूड करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग 55,000, ऐसे ही मशीनरी जो है उसकी बुक वैल्यू हम 80,000 दिखा रहे थे और उसको बेचकर हमें मिलता है 50,000, तो वो 30,000 फिर से आपका लॉस है जिसको राइट ऑफ करना है। बुक डेट्स हैं जो आपने देखा वहाँ 38,000, वैल्यू 1,10,000 थी लेकिन हमें मिल पाएगा कितना, सिर्फ 72,000। तो इसलिए जो आपका 38,000 है वो लॉस आपको राइट ऑफ करना है। बिल्स रिसीवेबल पे दिया हुआ था कि 8,000 बैड हो गए हैं, तो उसको भी अभी राइट ऑफ नहीं किया, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट के बाहर दी हुई है, मतलब अभी तक हमने इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं की है। तो इस 8,000 को भी राइट ऑफ करना है। फिर आपका बिल्स डिस्काउंटेड पे जो ये 5,000 हमने यहाँ लिया है, ये भी अभी हमें पता चला है कि जो हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी थी उस पर 5,000 की लाइबिलिटी बनेगी, तो वो भी अभी राइट ऑफ नहीं हुई है। तो ये सारी ही वैल्यूज़ आपकी अभी तक हमने लॉस की तरह से रिकॉग्नाइज नहीं की हैं, या इनको कहीं पर लॉस की तरह से नहीं दिखाया है, तो इनको अब दिखाना होगा। तो जो हमारा पहले से लॉस दिख रहा था बैलेंस शीट में 58,000, वो और बढ़ जाएगा। तो ये सभी वैल्यूज़ आपके डेफिशिएंसी या लॉस को बढ़ा देंगी। तो अब हमारा लॉस हो गया 1,94,000। लेकिन कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो इस लॉस को कम करेगी, क्योंकि जैसे हमने असेट्स को बेचा तो कुछ असेट्स पे हमें कम पैसा मिला, लेकिन कुछ असेट्स ऐसे भी हैं जिनको बेचकर हमें उनकी बुक वैल्यू से ज़्यादा मिला। जैसे आपकी इन्वेंट्री है, बुक्स में उसकी वैल्यू थी 95,000, लेकिन उसको बेचकर पैसा कितना मिला, 1,10,000। तो 15,000 उस पर आपको प्रॉफिट है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री 15,000 है, इतने से आपका डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम बुक्स में दिखा रहे थे कितने वैल्यू पे, 10,000 पे, लेकिन उसको बेचकर कितना मिलता है, 16,000। तो 6,000 यहाँ पे प्रॉफिट है। तो ये जो 21,000 है ये आपका फायदा भी है, तो इससे आपकी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी बन रही थी 1,94,000, 21,000 से कम हो जाएगी। सो 1,94,000 माइनस 21,000, नाउ वी आर लेफ्ट विद द डेफिशिएंसी ऑफ 1,73,000। और ये वही वैल्यू है जो हमें यहाँ पे नजर आई थी, 1,73,000। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो लास्ट में हम बनाते हैं लिस्ट एच, जिसमें डेफिशिएंसी या सरप्लस दिखाते हैं, वो सेम आना चाहिए जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में शो किया है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड the list H which shows the deficiency or surplus. फाइन। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो कैपिटल था इसमें ₹8 ही कॉल्ड अप था और ₹8 ही पेड अप था। तो हमने मान लिया कि हमें ये पैसा लौटाना है, पर सपोज अगर कॉल्स इन अरियर्स होंगे, मतलब हमने पैसा कॉल किया हुआ है लेकिन अभी तक आया नहीं, तो हम उसको असेट की तरह दिखाएंगे क्योंकि उस पर हमें पैसा मिलने वाला है। लेकिन अगर ये लिख दिया गया है कि ये पैसा नहीं आएगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक, देन वी आर नॉट गोइंग टू शो इट एज एन असेट। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर्स जो हैं, अगर पैसा हमें मिलेगा तो हम उसे असेट की तरह दिखाएंगे, और अगर ये गिवन है कि आपने नहीं मिलने वाला ये पैसा, तो हम उसको असेट शो नहीं करेंगे, राइट। सो वी विल नॉट शो इट एज एन असेट। और अभी तक जो अनकॉल्ड है कैपिटल, जो अभी तक जिसको कॉल नहीं किया उसको कॉल भी नहीं करना, दैट विल रिमेन अनकॉल्ड ओनली। सो दिस इज हाउ वी हैव टू शो द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड द डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट. So we can now come to an end or to this chapter on liquidation of a company, and you can keep trying more questions related to this.